elements are classified number classified according to their atomic mass. This was the, we can say, was groups from are classified as A, whereas A group is wide, but it consists of three elements. Please stay connected. Okay, if there is network failure, it will be back soon. So coming to the topic, today we discuss about modern one. This modern is the very important. So as you look at the periodic table, first of all, what we visualize that there is a table, and this modern table consists of 18 groups. Number 1 point, it consists of 18 groups. So 1 up to 18. Number 2, here noble gases are also included. So your voice is cracking. Modern periodic table. So coming to the topic right now. So the very first is that we know that it consists of 18 groups. Here noble gases are also included. Noble gases are also included. And instead of 6 periods, there are 7 periods. When we say group, it is vertical column that moves from top to bottom. And when we say period, so period is basically horizontal rows that's run from left to right or right to left. So modern periodic table was based upon the concept of atomic number. Up to now, Dobner, Newland, and Mendel, they devised the table according to their atomic mass, but this is based upon atomic number. Here we consider atomic number as a, we can say, periodic property. So periodic property, which is called functional periodic property, in this case is that is atomic number and not the atomic mass. Okay, and it was devised in year about 1913 by a scientist whose name was Henry Moseley. This table consists of 118 element. In the previous one, we discussed that there are 63 elements. So this table is complete now, and next, if some other element will be discovered, then the shape will be changed. The other thing that we let to know that this group where I am highlighting with the blue is called S block. This is called S block. This group that I'm highlighting here again with the red, this is called P block. So towards the left we have S block, and towards the right we have the P block. I'm writing here P block. In between S and P block we have D block. So this is the group that is basically D block group. Okay, that I highlighted here with the yellow color. This is D block. So this is basically D block.
and the two rows which are at the bottom, they are in the F block. They are in the F block. I've highlighted with this color. So that is basically what we can say F block. Now, if you consider the D block, it consists of 40 elements. F block consists of 28 elements. Okay. And so far other elements are, you can also count there and you can find. Next thing is that there is a ladder which is being recognized or highlighted here with the black. This ladder is considering being metal and this side being non-metal. And this ladder is considering the elements are what they are called. They are called metallites. And what are metallites? That are elements between metals and non-metals. Next point, the D blocks are also called transition metals, transition metal, with a group number from 3rd to 12. S blocks are also called S and P, S and P. They are also called representative elements. Representative means they represent the periodic table from the left and right. Okay, and S block usually we can say with the group number 1 and 2, and P block from the group number 13 up to 18. And sometimes 18 group is also called zero group or noble gases or inert gases. While F block, so F block is also called inner transition metals, and I as I told you metals. So they are, why they are called inner? Because they are derived from the transition metals which are from the Sudesh Kumar, don't annotate whatever source. Okay, so this is the base of the periodic table. So here the periodic function is what? Periodic function is nothing but it's a atomic number, which is number of the protons in the atom. So I consider here that there are 18 vertical columns which are called group, and there are 7 periods. So this is the case. Number one thing that's what very one important. Now, if we say we last time we discussed about valency also in our 9th classes. So here we can say valency. So valency first increase करती है. Okay, first valency increases from 1 to 4 and then decreases onwards. So every group has a specific valency, and valency is fixed for a group. For example, I'm saying for group 1, you remember that valency is equal to 1. For group 17, again valency is equal to 1. Group 18, valency is equal to 0. And how you calculate valency is so very important. For example, I'm giving one compound, like say oxygen, not one compound, sorry, element. Its number is equal to 8. Then we write the configuration. It's a 2 and 4. Sorry, 2 and 6. So what is valency? It is 8 minus 6, and that is equal to 2. minus 2. Not minus 2. भाई ये गलती बहुत करते हो आप. वैलेंसी में कभी भी -2 लगता है, वो लगता है ऑक्सीजन. ठीक है, -2 तो पता है कि हमें यहाँ पे जब चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ऑक्टेट बनेगा. बट वो जब रिएक्ट करेगा तो अदरवाइज की वैलेंसी क्या है? 2 है हमारे पास. सो वैलेंसी कैन नॉट बी विद चार्ज -2 + 2, वो फिक्स होती है. ठीक है. नेक्स्ट one more thing that is there. Suppose I am referring to some elements here. आज सिर्फ सोच समझो खाली, मतलब इसमें कुछ बताऊं नहीं लाग क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ समझो खाली इसमें क्या क्या बता रहा हूं मैं. तो भाई देखो यहां से देखो, Sir, you're not audible. Yes. Sir, you're not audible. I'm not audible. Now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sometimes the sound gets muted also. Okay, it is because of network. So coming to the highlighted portion, which I have highlighted here. Look at the same portion. What elements I highlighted? I am highlighting the element like carbon, neon, nitrogen, oxygen, and fluorine. So they are in the one period. So when elements are in the one period, their shell number is same. Remember.
जब एलिमेंट्स एक पीरियड में है तो उनका शेल नंबर क्या होता है, सेम होता है। जब एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो ग्रुप में उनका पीरियड नंबर चेंज होता है। अगर मैं इनकी बात करता तो यहाँ पे इनका पीरियड नहीं है, ये ग्रुप में है। ग्रुप में इनका क्या होता है, ग्रुप में इनका शेल नंबर चेंज होता है। अब वो कैसे, लेट्स से कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन इज 2 and 4. How many shells are there? 2 shells, K and L. Let's say nitrogen, atom number 7, 2 and 5. So how many shells are there? Again 2. Oxygen, 8, 2 and 6. How many shells are? We can say K and L. 2 shells are there. But when we compare with the group, for example, I am taking here neon and argon. Neon is atom number 10. So there are 2 and 8, that is 10 and 18, 2, 8, 8 and it is now we have 18. So in first case of the neon, we have 2 shell KL, but in the second case you have KLM. So remember, number 1 point is that shell number increases in group or shell number remains same in period. So this is the 1 point that remember. When the shell number, this is not serial number, when the shell number increases, it also increase atomic size. It also increase size of atom. For example, we know that the size of the neon is more than the helium, and even neon के ऊपर कौन आएगा, argon. Clear? This is the for the group. Now coming to the other points that we must know about the periodic table is that all the elements are arranged according to their atomic number. So first of all, we consider that what should be remembered from the periodic table. So it's very important. So remember, students, you have to need to remember the elements from 1 to 30. I mean to say from hydrogen, helium, lithium, boron, beryllium, up to what? Up to 30, that is called zinc. So these are the elements you need to know. You can remember the P block, 13 to 18. You can remember the S block, which is from the 1 to 2. And there are also some tricks, you know that good tricks. So you remember that. Other thing you remember that you must remember, अगर आपको question आता है, remember, अगर आपको question आता है, suppose question क्या, पहले देखो यहाँ पे, what is question? Question ये बोलता है कि write the name of element whose first shell is full and second shell is half. कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्या बोलता है कि वो एक एलिमेंट ऐसा लिखो जिसकी फर्स्ट शेल फुल है और सेकंड शेल क्या है, हाफ है। तो भाई पहली शेल की होती है के, दूसरी शेल की होती है एल, दो ही शेल बताई इसने। अब बोलता है पहली शेल फुल है, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं सबको पता है, 2 जाते हैं, और दूसरी शेल में कितने जाते हैं भाई, 8 जाते हैं। तो भाई कितने हो गए, हाफ में 4 हो गए। तो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6। तो 6 किसके बात होता है, बताओ भाई 6 कहां होते हैं, कार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट, कार्बन। क्लियर? अब ऐसे बोलता हूं मैं, अब बोलता है एक एलिमेंट है, दिस वन एलिमेंट, सपोज कोई एक्स है, क्लियर? अब उसके पास 3 शेल्स है। हाउ मेनी शेल्स, 3 शेल्स है, और 3 शेल्स जो उसके पास है उसके ऑक्टेट कंप्लीट है,
उसकी फर्स्ट शेल और सेकंड शेल फुल है, तो बताओ भाई एलिमेंट कौन सा है। तो देखो भाई, अब ये बोलता है कि Argon. KLM, listen, ठीक है, we have element with the 3 shells KLM. First 2 shells are complete, 2 8, and it is octet complete. मतलब लास्ट शेल में क्या है, octet complete. So what is atomic number? 8 and 8, 16 plus 2 18, and 18 is what? Argon. You're getting me? Next you have element with again 3 shells, 3 shells. Okay, the last shell has a valency of, अभी थोड़ा सा चेंज करो, valency of 1. So what is the element? Can you identify without having any data? Chlorine. How you identify? Because valency 1 is from So the 7. group, and if you have chlorine, it is 2, 8 and 7. So 8 minus 7 is equal to 1. So it is the element chlorine. Same is the case now. Your element X, clear, and there are 2 shells K and L, and again he's saying its valency is equal to 1. What is element? So again you are saying valency is 1. So 8 minus 7 is equal to 1, and there are 2. So 2 shells, it is basically what? Chlorine. So this is the case. This is a question you may be asked in NCRT, and this is a question of NCRT. So one thing you know that about the, Sir, I have a query. yes, Sir, if you have said that valency is equal to 1, so there will be two elements who will have valency 1. If in the KL shell, if that element have only one electron, then the valency will also remain 1 only. yes. Now the question is that, Sodium. listen, if we are saying it's a group number 1, and group number 17, both have valency 1. Now in case, suppose I am saying for lithium, atomic number 3. So the first shell is full, and the second shell is what? Having 1 electron. Even though its valency is also equal to, and same I am saying here for fluorine, it is 2 and 7, even valency is equal to 1. So in both cases, the answer may be either fluorine, or we can say, अब देखो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, or we can say helium. This is the question. यही भाई क्वेश्चन आपका? Excuse me, sir. Yes, दोनों केस में यहाँ पे वैलेंसी. So we can also say, that like in first group, the first the valence number of valence electron is 1, and in the 17th group, the number of valence electrons is 7. So listen. अब इस केस में आपने कैसे डिफाइन करना है? क्वेश्चन आपने पूछा है कि भाई दो, एक एलिमेंट एक्स है, पहले ध्यान सुना, उसने बोला उसके पास 2 शेल्स है, तो यहाँ पे भी 2 शेल्स, और वैलेंसी यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों फॉल करते हैं, पर उसने कुछ दिया होगा डाटा, वहां पे बोला होगा कि भाई जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो अब 3 फ्लोरीन का थोड़ी हो सकता है, एक उसने हिंट दिया होगा यहाँ पे। पर अगर आपके पास हिंट नहीं है तो आप यू कैन राइट बोथ, नो वन इज सेइंग कि भाई आपने गलत किया, ठीक है। ये भी बोल सकते हो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बोल सकते हो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी उसकी 1 है, तो बताओ भाई क्या हो सकता है। तो आपने यहाँ पे ओबियसली देखना है, तो डाटा कुछ ना कुछ चेंज होगा वहां पे, अब ऐसा नहीं कि सेम होगा, तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसी तरह से भी आपको कोई भी यहाँ पे निकालने को आए, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे भी हमारे पास एक एलिमेंट है, मैं आपको फिर देखो बता रहा हूँ, आई एम सेइंग यू हैव एलिमेंट एक्स, इसको मैं बेरिलियम ले रहा हूँ और ऑक्सीजन दे रहा हूँ विथ 2 शेल्स KL, ठीक है, एंड वैलेंसी इज 2। सो भाई पहले देखते हैं बेरिलियम का एटॉम नंबर 4, 2 and 2, इसका 8, 2 and 6. What is valence in both case? What is the valence in both case? 2.
maybe he's asking about X whose valence shell consists of 6 electrons, or may he turn the statement whose valence shell consists of 2 electrons, or may he write that this X has atomic number of 8, may he write the atomic number of 4. Okay, so see, there is some guess also, but when there is no guess, no clue, you can put both, okay. So this is the statement, then you have to use your mind. So what statement is being here? So practice these types of questions which are in your book today. So go in the exercise section and you will find these questions like that questions, and you can easily do that. Coming to the next portion. So when the very first thing is that we know about this, and we must know the different groups. For example, group number 1, तो ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं 1A, याद रखना भाई। और 1A किसके हिसाब से भाई? तो 1A है दिमित्री मेंडविल के हिसाब से, और ये है हेनरी मोसले के हिसाब से। अच्छा भाई, 1B को क्या बोलते हैं भाई? मतलब कि इट्स सेकंड A को किसको बोलते हैं भाई? सेकंड A इज योर ग्रुप नंबर 2। देन थर्ड, व्हाट इज थर्ड A? Can you name? It is group number 13. Just write that. Fourth A is group number 14. Fifth A is group number 15. Sixth A is group number 16. Seventh A is seventh A is group number 17. Clear? One thing clear. Now we know that the Mendel just divide the group from 1 to 7 into A and B. So we classify the A, and now it's B time. So group 1B, it is basically 11th. Second B is 12th. Third कौन सा आएगा भाई? ये तो सारे हो गए, ये भी हो गए, यहां से बच गए। तो थर्ड B is basically third, fourth B is basically fourth, fifth B is basically fifth, sixth B is basically sixth, and seventh B is basically seventh. And now Can you please repeat what is 1B? 1B is 11th. 1B is 11th, and second B is 12th, third is third, fourth is fourth, fifth is fifth, sixth is sixth, and seventh B is seventh. Now what is 10, the remaining one, 3 groups, and they are also called, this 8 group is also called, इसी को बोलते हैं, कल बताया तो मैंने, hydride gap, because they do not form which one, hydrogen के सारे कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो you can use the concept of the Mendel, and you can mix the concept of Mendel and this will Mendeleev the most that is always overlapping here, ये overlap करेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इधर से उधर पूछ सकता है, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, काफी सारी डिफरेंसेस हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास, तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट हमारे पास इसमें ट्रेंड्स क्या क्या आते हैं। तो भाई यू नो दैट वैलेंसी जो है, व्हाट इज वैलेंसी? ऑल ऑफ यू नो दैट वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, एंड फॉर द एलिमेंट्स, फर्स्ट द वैलेंसी इंक्रीजेस from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0. तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 है, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 है। डी ब्लॉक की जो वैलेंसी है, याद रखना यहाँ पे, दैट इज ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक की वैलेंसी वेरिएबल है। डी ब्लॉक की वैलेंसी वेरिएबल है, उसकी बात नहीं करो मैं यहाँ पे। तो ग्रुप 14 की 4 है, तो पहले वैलेंसी इंक्रीज की, उसके बाद क्या हुआ, 15 पे there are 5 valence electrons, so it is equal to 8 minus 5 3. 16 पे there are 6 valence electrons, so it is 6 minus
मतलब 8 minus 6 2. 17 पे there are 7 valence electrons, so it is 8 minus 1. और 18 पे there are 8 octet and that is 8 minus 8 is 0. and 0 वैलेंट भी बोलते हैं. अब हमने देखा कि जो वैलेंसी हमारे पास है वो ग्रुप में, देखो भाई ग्रुप में क्या होती है वैलेंसी, ग्रुप में वैलेंसी फिक्स होती है, बट वहीं पे पीरियड में वैलेंसी क्या होती है भाई, वैलेंसी वेरिएबल होती है. ठीक है, सो दिस इज द वन केस. Excuse me, sir. यस, हाँ जी बताइए. Sir, in the last group, the 18th group, you said that the valency, so valency is 0, but in the case of helium, we see. What do you see? Sorry, my bad. -2 करोगे 6 बनाओगे क्या? हाँ, वही ख्याल है आपके 8 - 2 करके 6 बनाने का, लग रहा मुझे कुछ. वो वहां पे ड्यूप्लेट है भाई, उसको याद रखो ड्यूप्लेट है, उसको ऑक्टेट नहीं मानते, उसको ड्यूप्लेट मानते, उसको बेचारे के पास 2 ही, कहां से उसको वेट करें. ठीक है, वो ड्यूप्लेट होगा, वो भी वहां पे स्टेबल माना जाता है, वो एक्सेप्शन केस है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है. तो भाई ये चीज हमारे पास है. और वैलेंसी क्या होती है कि कितनी कैपेसिटी है एलिमेंट की कि वो कंबाइन करे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. और जब एलिमेंट कंबाइन कर चुकता है, लूज लास्ट गेन करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलते हैं ना. तो जब हम दिखाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो वैलेंसी नहीं. और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, वेरिएबल होती है. तो यहां से हमें ये पॉइंट मिले को मिला कि डी ब्लॉक की वैलेंसी वेरिएबल होती है, उसकी फिक्स नहीं होती. ठीक है, वैलेंसी पहले इंक्रीज करती फिर डिक्रीज करती है. अब दूसरा भाई एटॉमिक साइज क्या होता है, इसकी बात करते हैं. तो भाई एटॉमिक साइज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ये रहा हमारे पास एटम. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस बीच में और ये शेल्स. कितने शेल इसमें भाई, 2 शेल है, के और एल. ये कोर एटम है, न्यूक्लियस और यहाँ पे शेल, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल. विच एटम इज लार्जर, ए और बी, बताओ भाई. Sir, B. Obviously B. So how you identify, you calculate the number of shells and you know that the shell increases and the size also increases. So if the atom is having more shells, that means that is more larger. But what's basically the size here? The size is here the distance from the center of the nucleus, इसका center पकड़ना है, ठीक है, to the outermost electron. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, you know that, तो इसके इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एटॉमिक साइज. क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो एटॉमिक साइज जो है मतलब उसको मेजर करते हैं. एटॉमिक साइज कोई पूरा साइज नहीं होता भाई, ये साइज होता है सिर्फ हाफ ऑफ दी वी कैन से एटम का, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई. ओके, तो एटॉमिक साइज कोई एटम का साइज पूरा नहीं है, पूरा डायमीटर नहीं है, सिर्फ क्या है, रेडियाई. सर्कल का रेडियाई कहां से, उसके सेंटर से लेके कहां तक, वो उसका सर्कल का साइज बोलेंगे. बट उसको डायमीटर बोलते हैं, वहां पे पूरा ले तो डायमीटर बोलते हैं, यहाँ हाफ ले तो रेडियस बोलते हैं. बट यहाँ पे साइज लें तो तब भी रेडियस बोलेंगे, रेडियस लेंगे तब भी क्या बोलेंगे, साइज ही बोलेंगे. तो भाई इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज. और इसी को हम टर्म लेते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि रेडियस एक टर्म है जो आपको वेरी फैमिलियर हो आपसे, योग भी हमारे पास. नंबर 2, सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, डिफाइन कर दिया, एटॉमिक साइज डिफाइन कर दिया. अब उसके बाद इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है. अब ये पीरियड में क्या होता है इसके बारे में, और ग्रुप में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि एटॉमिक साइज और रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर, बताया भाई आपको. तो अभी उससे पहले ये बताया कि शेल नंबर जो है वो पीरियड में क्या रहता है भाई, सेम रहता है, और ग्रुप में क्या रहता है अभी, वो डिफरेंट हो जाते हैं, बताया भाई यहाँ पे. अब यहाँ पे समझ जरूरत है, समझना इससे है कि हमारे पास एक कार्बन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ये 2 है भाई, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट. ठीक है, पहले 6 आता है फिर 7 आता है. इसके पास 2 शेल है, के और एल, इसके पास भी 2 शेल है, के और एल. फर्क क्या दोनों में भाई, फर्क है तो सिर्फ एक प्रोटॉन का है ना. ये क्या लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर लिखा है, तो फर्क किसका, एक प्रोटॉन का. जब यहां से यहाँ पे जा रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है. तो प्रोटॉन का इंक्रीज होना मतलब न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना.
प्रोटॉन का इंक्रीज होना मतलब न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। तो भाई कार्बन से अगर हम नाइट्रोजन पे जा रहे हैं तो व्हाट इज इंक्रीज्ड, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय यूनिट 1, understand? And when nuclear charge increase, that you are saying that positive charge increased, और positive charge बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाइंड करेगा या रिपेल करेगा भाई? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? Attract. तो मुझे बताओ साइज क्या होना चाहिए नाइट्रोजन का, कम होना चाहिए बढ़ना चाहिए कार्बन के कंपेयर? Increase. अरे भाई उल्टा क्यों बोल रहे हो? कार्बन के पास है 6 प्रोटॉन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास है 7 प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो कंट्रैक्शन होगी भी, अट्रैक्ट होंगे ना दोनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्यों जाएगा, कम नहीं होगा? तो मतलब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि भाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज as shell number remains same, nuclear charge increased by 1, therefore the nuclear charge that increases by 1 that tend to attract the electron from the outermost valence shell and thereby reduce the size, hence the atomic size of the nitrogen is lower than the carbon. तो भाई कार्बन का साइज बड़ा होगा, नाइट्रोजन का कम। जब नाइट्रोजन से हम कहा जाते हैं, फ्लोरीन में जाते हैं, फिर हमारे पास 2 शेल्स के और एल, एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज ने फिर इलेक्ट्रॉन को बाइंड किया तो फिर हमारे पास नाइट्रोजन का साइज। तो भाई क्या हुआ देखते हैं आप कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो भाई याद रखना एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता, भाई क्यों डिक्रीज करता है, व्हाई डिक्रीजेस? नंबर 1 इसलिए एक तो शेल नंबर सेम रह रहा है, ठीक है, नंबर 2 जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है किससे, कितने यूनिट से भाई, बाय 1 यूनिट। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, ये हो गया। अब व्हाट इज ट्रेंड इन केस ऑफ ग्रुप? ग्रुप में देखो ग्रुप में क्या है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा, बट इससे पहले हम ग्रुप को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं दोबारा से। तो ग्रुप में क्या भाई, तो ग्रुप के लिए मैं ग्रुप को देखता हूं, कार्बन के बाद क्या था भाई हमारे पास, व्हाट वी हैव आफ्टर कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, देन जर्मेनियम। हमें ग्रुप की बात नहीं करनी, बस 2 एलिमेंट की बात करनी। तो कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन्स, पहले 2 फिर हमारे पास 4, इसका 14 एटॉमिक नंबर, इसमें पहले में 2 फिर 8 10 और फिर 4, दोनों की वैलेंसी 4, 8 - 4 इज 4 एंड 4 का 4 ही होता है, आपको पता ही है। तो ये पहले केस में कितने शेल्स है, हमारे पास 2 शेल्स है, के और एल, और दूसरे केस में कितने शेल है भाई, के एल एम। तो भाई सिंपल सी बात है, शेल नंबर बढ़ रहा है, तो शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल तो सेम नहीं रहना, तो जब शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। अब आप ये सोच लोगे कि शेल नंबर बढ़ गया तो साइज बढ़ गया, मान गए, बट सर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, पहले 6 था अब कितना है, 14 है, 8 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा ना। जब हमने देखा था कार्बन से हम जगह कहाँ गए थे, नाइट्रोजन में, तो वहां पे तो 1 यूनिट चार्ज बढ़ा था, बेशक शेल 2 ही थे, के एल। अब देखो भाई कंपेयर करके बता रहा हूं, अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप एक रो में खड़े हो, ठीक है, एंड यू आर एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, तो you are being attracted more towards the teacher, but if you are sitting at the last, what will happen? वही रूम है, वॉइस वही होगी, बोर्ड वही होगा, सब कुछ वही होगा, बट आपका टेंशन, ठीक है, टीचर की तरफ नहीं होगा, या टीचर का टेंशन आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा, वॉइस नहीं पहुंची, जो भी हमारे पास है, बट एनवायरनमेंट वैसा ही रहेगा। तो सेम यहाँ पे भी केस है, जब डिस्टेंस काफी बढ़ गया है, वो आगे बढ़ गया डिस्टेंस, तो भाई न्यूक्लियस जितनी फोर्स लगाए, 8 यूनिट लगाए, 10 लगाए, तो बैक बेंचर्स होने वाले नहीं है। मतलब वही बात यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस ही बढ़ गया, डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर का चार्ज जितना बढ़ा हो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, निग्लिजिबल ही होता है। तो मतलब क्या हो गया, जब न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ेगी जो एम शेल में है, तो भाई हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है उसका बढ़ना, इफ वी कंपेयर विद द शेल इंक्रीज,
दैट इज निग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो शेल का साइज बढ़ गया वो काफी ज्यादा बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना यहाँ पे निग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे नहीं आती और न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये पता चलता है कि ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है। तो यहां से हमें ये मिलता है कि व्हेन वी मूव एटॉमिक साइज की बात करें, ठीक है, तो ये पीरियड में मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज क्यों करता है? दो यहाँ पे रीजन बताया मैंने, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, दूसरा शेल नंबर यहाँ पे सेम रहता है। और यहाँ पे इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि भाई न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और दूसरा यहाँ पे जो शेल है, यहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज हो रही है हमारे पास। और जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होता है? कम होता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम बनती भाई। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आपने याद रखनी है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज। दिस वे वी कैन से, अगर हमारे पास एक ग्रुप है, सपोज मैं ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया कार्बन, उसके बाद लिया मैंने सिलिकॉन, उसके बाद लिया मैंने जर्मीनियम, तो किसका साइज ज्यादा होगा भी? जर्मीनियम का साइज ज्यादा सिलिकॉन से और कम साइज किसका? कार्बन के। ये हो गया ग्रुप का ट्रेंड भाई हमारे पास। अगर मैं एक पीरियड को ले रहा हूँ, सपोज मैंने बोरान के आगे लिया भाई क्या? कार्बन, कार्बन के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो किसका साइज ज्यादा भाई? बोरान का, क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ये साइज भाई हमारे पास। एग्जाम्पल के साथ में ये समझाना इसको। अब दूसरी बात यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, इसी तरह से भाई यहाँ पे देखो ये भी ऑर्डर बताया एटॉमिक साइज सेंडिंग ग्रुप का, जहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज ज्यादा बोरान, ब्रोमीन से, ब्रोमीन का क्लोरीन से, और सबसे भाई फ्लोरीन का, क्योंकि ये भी ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या होता है कि नीचे को ग्रुप का साइज बढ़ता है। तो ये भाई रहा हमारे पास ट्रेंड। अब थोड़ा सा याद रखो, 3 व्यक्ति एटॉमिक साइज के। अब एटॉमिक साइज अगर नीचे को इंक्रीज कर रहा है ना, तो और भी चीजें जो इंक्रीज करती है, ये याद रखना हमेशा भाई, आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस की तरह ही सेम ट्रेंड शो करता है। कौन है भाई? मेटालिक करैक्टर। मतलब क्या भाई इसका? कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो मेटालिक करैक्टर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अगर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है मतलब पीरियड में, तो मेटालिक करैक्टर भी डिक्रीज करता है। और एक चीज और है जो इसके साथ में आएगी, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। क्योंकि आपको पता है कि ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोले भाई? ये 3 चीजें हमारे पास है। मतलब क्या चीजें भाई? ये है हमारे पास, ठीक है, दिस इज MAE, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, इसको आप लिखो ऐसे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, आप इसको AME लिखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सब चलती है कि जहां पे चलेगी तो साथों में चलेगी। मतलब अब देखो इसमें क्या रखना याद, ग्रुप में इंक्रीज करेगा, ठीक है, ग्रुप में इंक्रीज करेगा और पीरियड में डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे रखो याद कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जहां पे भी जाएगी तो वो क्या करेगी जी? ग्रुप में जाएगी तो ग्रुप में क्या होगी? कि भाई इंक्रीज होगी। और अगर वो पर्सनल जाएगी तो क्या होगी? उनकी इमेज डिक्रीज होगी। बस सिंपल से याद रखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब ग्रुप में जाएगी तो क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। ग्रुप में उनकी बहुत तादाद होगी। बट वह भी जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहाँ जाएगी भाई? पर्सनल जाएगी तो भाई कोई पूछेगा नहीं उनको, दे विल डिक्रीज। दिस इज द ट्रेंड। अब मुझे बताओ भाई कि मेटालिक करैक्टर ग्रुप में क्या करता है? इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। और कौन सा भी? एटॉमिक साइज पीरियड में क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। देखो इसका रेफरेंस आपको बता देता हूं मैं विद टेबल। तो अब टेबल पे आते हैं। अगर आप टेबल को अच्छे से लोकेट करो तो भाई मैंने आपको बहुत बार कहा है कि भाई मैंने एक यहाँ पे लैडर बनाई, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, देयर इज अ टेक्स्ट फ्रॉम समवन। अच्छा, तनिषा को याद आ रही सबकी है, शी इज राइटिंग हाई टू ऑल। तो भाई अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले भी यहाँ पे देखो आप, तो मैंने ये कहा था कि ये हमारे पास एक ब्रिज होता है जहां पे हमारे पास इस तरफ मेटल होते हैं, इस तरफ नॉन मेटल होते हैं। भाई आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये लेफ्ट ये राइट,
कहाँ जा रहे भाई? वी आर गोइंग अलोंग द पीरियड। यहाँ पे क्या मिला आपको? मेटल। यहाँ पे क्या मिला आपको? नॉन मेटल। तो बताओ भाई क्या हुआ? मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हुआ, तो Yes, क्या sir. बढ़ा? नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ा। अगेन देखो यहाँ पे, मुझे ये बताओ भाई, अब यहाँ पे देखो, नाउ लुक एट दिस। सबको पता है भाई नाइट्रोजन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? नाइट्रोजन क्या है, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है भाई, ये क्या है? तुम लोगों की बात सर, तुम तो इसको पता नहीं क्या लिखो। So non-metal. नॉन मेटल। और भाई ये क्या है भाई हमारे पास नीचे, जैसे हमारे पास लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, या जो हमारे Sir, पास यहाँ पे metals. मेटल्स हैं। तो नीचे को क्या हुआ बताओ भाई? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट विल हैपन? So मेटालिक decrease करेक्टर। in metallic character. ओ भाई कहाँ हो गया भाई? नीचे मेटल और ऊपर नॉन मेटल था। Metallic character. इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर, डिक्रीज इन नॉन मेटालिक करेक्टर, इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर। सो ग्रुप में मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और जैसे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड टेंड टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद अ पॉजिटिव साइन, कैटायन बनाते हैं हमारे पास। सो दिस इज द केस ऑफ द ट्रेंड ऑफ द थ्री थिंग्स। नाउ मेटालिक करेक्टर क्या होता है भाई? वही सिनोरस, लस्ट्रस, डक्टाइल, malleable, react with acid to produce H2, okay, and their oxides are it's metal की। नहीं पता है? Tell me what is the nature of oxides of metals? अरे भाई कितनी बार बोला कोई So मेटल हो ना? basic. So basic in ये nature. सोडियम लिया, सोडियम की बेस बनती है भाई, और सल्फर लिया, सल्फर कैसे बनता है? ठीक, ओके। सो मेटल की ऑक्साइड्स क्या भाई हमारे पास बेसिक है। So this today we just go through this topic. So please read the three topics, that is metallic character, atomic size, and what we can say electropositive character. These three characters, and I hope that today's topic is effectively. And what do? You just go through the NCERT questions and find that which element, what is the name of element having this and this data and that and data. So probably we are doing modern law periodic table, but it's your time to just revise up to 330 elements. Next class will be taken on the same topic, that is the modern periodic table, but tomorrow is not possible because it's PTM, so we'll switch on the class on the next. Okay, if any question, any doubts, you can ask me for that. काफी भाई आज, क्योंकि अब इकट्ठा तो नहीं पढ़ पाएंगे। Yes, any doubts? No? तो चलो अभी इसको एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारे पास, कल नहीं होगी, मतलब कमिंग उसके बाद होगी। सो हैव अ गुड डे।